Hello students, welcome to our channel. I am Rekha Khola. Today we are going to start with a new chapter from gathering to growing foods. भोजन संग्रह से उत्पादन तक. इसमें हम आगे पढ़ेंगे. Nanu's lunch. Nanu was eating her favorite food, boiled rice, squash, pumpkins, beans and meats. Her grandmother had grown the squash, pumpkin and beans in the little garden plot at the back of her house. She remembered the food had been so different when she had been to Madhya Pradesh as part of a school trip. It was hot and spicy. Why was that so? यानी कि नेनू अपना मनपसंद भोजन कर रही थी. चावल, स्क्वैश, कद्दू, बीन्स और गोश्त. ठीक है. स्क्वैश, कद्दू और बीन्स उसकी नानी ने घर के पिछवाड़े स्थित एक छोटे से बगीचे में ही उगा रखे थे. खाना खाते खाते नेनू को कुछ दिन पहले अपने स्कूल की ओर से की गई यात्रा के दौरान मध्य प्रदेश में किए गए भोजन की याद आ गई. उसमें कितना मसाला था, पर उसमें इतना मसाला क्यों था? आगे देखिए. वेराइटीज ऑफ फूड. Today's most of our food such as fruit, vegetable, grain, milk and meat come from plants that are grown and animals that are reared. Different plants grow in different conditions. Rice, for example, requires more water than wheat and barley. This explains why farmers grow some crop in some areas and not in other areas. Different animals too prefer different environments. For instance, sheep and goat can survive more easily than cattle in dry, hilly environment. But as you saw in chapter 2, women and men did not always produce their own food. इसमें क्या बताया है कि भोजन का जो अधिकांश जो हिस्सा है उगाई जाने वाली विभिन्न फसलों और पाले गए पशुओं से प्राप्त होता है. ठीक है. अलग अलग फसलों को उगाने के लिए अलग अलग प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है. धान की खेती के लिए गेहूं या जौ की अपेक्षा अधिक पानी की आवश्यकता होती है. ठीक है. और हम देखते हैं कि किसान जो विभिन्न प्रकार की फसलों को विशेष क्षेत्रों में ही उगाती हैं. फसलों को ही नहीं, पशुओं को भी उनके अनुकूल वातावरण की आवश्यकता होती है. सूखी और पहाड़ी जलवायु में मवेशियों की अपेक्षा भेड़ और बकरी अधिक सहजतापूर्ण जिंदा रह सकते हैं. देखिए, आपने दूसरे चैप्टर में पढ़ा है कि स्त्री पुरुष अपने भोजन का उत्पादन हमेशा से नहीं करते आ रहे हैं. ठीक है. आगे देखिए. द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग. We have seen in chapter 2 that climates of the world was changing and so were planted animals that peoples use as food. Men, women and children probably observed several things. The places where edible plants were found, how seeds block of stalk fell on the ground and new plants sprouted from them. Perhaps they began looking after plants, protecting them from birds and animals so that they could grow and seeds could ripen. In this way people became farmers. यानी कि जैसे हमने चैप्टर 2 में पढ़ा कि दुनिया की जो जलवायु है वो परिवर्तनशील है और इसके साथ ही क्या होता है कि जो वनस्पति और पशु है वो भी बदलते रहते हैं. इनका उपयोग लोग भोजन के रूप में करते हैं. लोगों ने कुछ विशेष बातों की ओर भी ध्यान दिया, जैसे खाने योग्य वनस्पतियाँ कहाँ कहाँ मिल सकती हैं, बीज अपनी डंठल से टूटकर कैसे गिरते हैं और गिरे हुए बीजों का जो अंकुरण है उनसे पौधों का निकलना. इसी प्रकार क्या देखा उन्होंने कि पौधों की देखभाल करने की शुरुआत हुई होगी इस तरह से जानकारी प्राप्त करके. ठीक है. पौधे ठीक से बढ़ सके इसके लिए उन्होंने जाना, बीज पक सके इसके लिए उन्होंने चिड़ियों और जानवरों से बचाया होगा उनको. इस प्रकार से क्या हुआ, धीरे धीरे कृषक बन गए होंगे. आगे देखिए. Women, men and children could also attract and then tame animals by leaving food for them near their shelters. The first animals to be tamed was the wild ancestor of the dog. Later, people encouraged animals that were relatively gentle to come near the camps where they lived. These animals such as sheep, goat, cattle and also the pig lived in herds and most of them ate grass. Often people protected these animals from attack by the other wild animals. This is how they became herders. यानी कि इसमें बताया पुरुष, स्त्री और जो बच्चे हैं वो पशुओं को पालतू बनाने की तरफ अट्रैक्ट हुए. ठीक है. और उन्होंने अपने जानवरों को आकर्षित किया, अपने जो घर बना रखे थे उन्हीं के आसपास रहने के लिए उनको आकर्षित किया और उन्हें पालतू बनाया होगा. ठीक है. अब यहाँ पे क्या बताया कि कुत्ते को सबसे पहले पालतू बनाया गया था. धीरे धीरे लोगों ने भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को भी अपने घरों के आसपास रहने के लिए उत्साहित करना शुरू कर दिया. और ये झुंड में रहने वाले जानवर थे, घास खाते थे. प्राय लोग क्या करते थे कि हिंसक जंगली जानवरों के हमलों से इनकी सुरक्षा करते थे और इस प्रकार से धीरे धीरे वो पशुपालक बन गए होंगे. आगे देखिए. A new way of life. Plant a seed, you will notice that it takes some time to grow. This may be for several days, weeks, months and in some cases years. When people begin growing plants, it means that they had to stay in the same place for a long time, looking after the plants, watering, weeding, driving away animals and birds till the grain ripened, and then the grain had to be used carefully.
As grain had to be stored for both food and seeds, people had to think of ways of storing it. In many areas, they began making large clay pots or wove baskets और dug pits into the ground. यानी कि एक नई जीवन शैली के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि आप किसी पौधे के बीज को बो करके देखिए, आपको क्या लगेगा कि ये विकसित होने में कुछ समय भी लेता है, ठीक है, और ये जो प्रक्रिया होती है कुछ दिनों में, महीनों में या फिर कुछ साल तक लग जाते हैं, ठीक है। इसलिए जब लोगों ने पौधे उगाना शुरू किया तो उनकी देखभाल करने के लिए उन्हें एक स्थान पर ज़्यादा समय तक रहना पड़ा। उन्हें बीज बोने से पहले फसलों के पकने तक पौधों की सिंचाई करना, खरपतवार हटाना, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करना, ऐसे बहुत से काम करने पड़ते थे, ठीक है। और कटाई करने के बाद में अनाज के उपयोग करने के लिए उन्हें बहुत संभाल कर रखा जाता था, ठीक है। और उन्होंने क्या बताया, एज ग्रेन हैड टू स्टोर फॉर बोथ फूड एंड सीड्स, पीपल हैड टू थिंक ऑफ वे ऑफ स्टोरिंग इट, यानी कि अनाज को भोजन और बीज के रूप में बचा करके रखना बहुत ज़रूरी था। इसलिए लोगों ने इसी के भंडारण की बात सोची और भंडारण करने के लिए बहुत से क्षेत्रों के जो लोग हैं उन्होंने मिट्टी के घड़ों को इस्तेमाल किया, टोकरियाँ बनी, फिर जमीन में गड्ढा खोदा। स्टोरिंग एनिमल्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि एनिमल्स मल्टीप्लाई नेचुरली बिसाइड्स इफ दे आर लुक्ड आफ्टर केयरफुली दे प्रोवाइड मिल्क विच इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड एंड मीट वेन एवर रिक्वायर्ड। इन अदर वर्ड्स एनिमल्स दैट आर रेयर्ड कैन बी यूज्ड एज ए स्टोर ऑफ फूड। यानी कि जब एनिमल्स मल्टीप्लाई नेचुरली, यानी कि जानवर अपनी संख्या बढ़ाने के लिए बच्चे देते, बिसाइड्स इफ दे आर लुक्ड आफ्टर केयरफुली, और जानवरों की उचित देखभाल की जाए तो उनकी संख्या लगातार बढ़ती जाती। वे साथ ही साथ उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता था, भोजन का भी एक महत्वपूर्ण वो स्रोत है, ठीक है। दूध ही नहीं बल्कि जानवर हमें मांस भी प्रदान करते हैं, ठीक है। और दूसरी तरह हम कह सकते हैं कि ये पशुपालन भोजन के भंडारण का ही एक तरीका है। आगे देखिए, finding out about the first farmers and herders. You will notice a number of blue squares. Each marks a site from where archaeologists have found evidence of early farmers and herders. These are found all over the subcontinent. Some of the most important ones are in the northwest, in present day Kashmir, and in east and south India. यानी कि आपको जो मानचित्र में नीले वर्ग दिखाई दे रहे हैं तो वो क्या है कि इनमें से जो प्रत्येक बिंदु उस स्थल को दर्शाता है जहाँ जो आर्कियोलॉजिस्ट यानी कि पुरातत्वविदों की शुरुआत जो कृषकों और पशुपालकों के होने के प्रमाण मिले हैं। ये प्रमाण सारे कहाँ मिले हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में मिले हैं, और इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है पश्चिमोत्तर का क्षेत्र, आधुनिक कश्मीर और पूर्व तथा दक्षिण भारत। टू फाइंड आउट वेदर दीज साइट्स वर सेटलमेंट ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर्स, साइंटिस्ट स्टडी एविडेंस of plants and animals bones. One of the most exciting finds include remains of burnt grains. They may have been burnt accidentally or on purpose. Scientists can identify these grains, and so we know that a number of crops were grown in different parts of the subcontinent. They can also identify the bones of different animals. देखिए इसमें क्या बताया गया है कि वास्तव में जो इन स्थानों पर जो कृषक थे और पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं, इसको जानने के लिए क्या किया कि वैज्ञानिकों ने खुदाई से प्राप्त पौधे और पशुओं की हड्डियों के जो एविडेंस है, यानी कि जो सबूत, जो अवशेष है, उनका अध्ययन करते हैं वो। और इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो अवशेष जले हुए अनाज के दानों के हैं। इन्हें देख करके क्या लगता है कि गलती से या फिर जानबूझकर जलाया गया होगा, ठीक है। अब साइंटिस्ट क्या बता रहे हैं कि इन अनाज के दानों को पहचान सकते हैं। इनके अध्ययन से हमें पता चलता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में विभिन्न भागों में अनेक प्रकार की फसलें उगाई जाती रही होंगी और जानवरों की हड्डियों को भी पहचान सकते हैं, ठीक है, वैज्ञानिक। आगे देखेंगे जो तालिका दी गई है इसमें अनाज और पालतू जानवरों की हड्डियों के अवशेष कहाँ कहाँ मिले हैं, ये हम इसमें देखेंगे। देखिए, ग्रेन्स एंड बोन्स आर साइट्स, पुरास्थल कौन कौन से हैं, तो अनाज और हड्डियाँ, ठीक है। वीट, बार्ले, शिप, गोट, कैटल्स, यानी कि गेहूं, जो मवेशी, भेड़, बकरी, ये मेहरगढ़ में इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान, जो पाकिस्तान में आज के दिन। राइस, फ्रेगमेंट्री एनिमल्स बोन्स, यानी कि जो है चावल, जानवरों की हड्डियों के टुकड़े। कोल्डी हवा इन प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश, कोल्डी हवा जो आधुनिक उत्तर प्रदेश है। राइस, कैटल, हूफ मार्क्स ऑन क्ले सरफेस, यानी कि चावल, मवेशी और मिट्टी पर खुरों के निशान, ये महागारा इन प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश। वीट एंड लेंटिल, यानी गेहूं और दलहन, गुफकराल इन प्रेजेंट डे काश्मीर, यानी कि आधुनिक काश्मीर में है। वीट एंड लेंटिल्स जो कैटल, शिप्स, गोट, वेफेलो, यानी कि गेहूं, दलहन, कुत्ते, भेड़, मवेशी, भैंस और बकरी, ठीक है, ये कहाँ है, बुर्जहोम इन प्रेजेंट डे काश्मीर। वीट, ग्रीन, ग्राम, बार्ले, बेफेलो, ऑक्स, यानी कि गेहूं, जो हरे चने, भैंस और बैल, ये कहाँ है, चिरान इन प्रेजेंट डे बिहार में है प्रेजेंट डे में। आगे देखिए, मिलेट, कैटल, शिप, गोट, पिग,
यानी कि ज्वार बाजरा, सुअर, मवेशी, भेड़ बकरी, ये कहाँ है? हल्लूर में, प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश में, आज के दिन आंध्र प्रदेश में। ब्लैक ग्राम, मिलेट्स, कैटल, शिप, पिग, पैमपल्ली इन प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश। These are just some of sites from which grain and bones have been found. ये स्थान है जहाँ पर अनाज और हड्डियों के अवशेष मिले हैं। ठीक है, आगे चलिए। Towards a settled life, यानी कि स्थायी जीवन की ओर, आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड ट्रेसेस ऑफ हट्स और हाउस एट सम साइट्स। फॉर इंस्टेंस इन बुर्जहोम इन प्रेजेंट डे काश्मीर में है जो पीपल बिल्ड पिट हाउसेस विच वर डग इनटू अ हाउस विद स्टेप्स लीडिंग इनटू देन. These may have provided shelters in cold weathers. Archaeologists have also found cooking hearths both inside and outside the huts, which suggests that depending on weather, people could cook food either indoors or outdoors. Archaeologist का मतलब होता है पुरातत्वविद, ठीक है। और उनको क्या मिले? कुछ झोपड़ियाँ और घर भी मिले हैं जो उस टाइम की होने के प्रमाण मिलते हैं, ठीक है। अब उदाहरण की दृष्टि से देखें तो बुर्जहोम यानी कि वर्तमान में जो कश्मीर में है कि लोग क्या करते थे? गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें क्या कहा गया है? गर्तवास कहा गया है, पिट हाउस, ठीक है। इन घरों में जाने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। ये घर उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा प्रदान करते थे, ठीक है। इनमें पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने के स्थान भी मिले हैं। इन्हें देखकर कि ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुरूप घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे, ठीक है। आगे देखिए, ड्रॉ अ पिट हाउस, गर्तवास का एक चित्र बनाइए, तो बना लीजिए आप, ठीक है। आगे देखिए, stone tools have been found from many sites as well. Many of these are different from the earlier Paleolithic tools, and that is why they are called Neolithic. These includes tools that were polished to give a fine cutting edge, and mortar and pestles used for grinding grains and other plants produce. Mortar and pestles are used for grinding grains even today. Several thousand years later, at the same time, tools of the Paleolithic types continue to be made and used. And remember, some tools were also made of bones. यानी कि इसमें क्या बताया है कि कई स्थानों पर तो पत्थर के जो औजार मिले हैं, इनमें कई औजार तो पैलेलिथिक टूल्स हैं जो यानी कि पुरापाषाण युगीन औजार से भिन्न हैं, ठीक है। इन्हें जो नवपाषाण युगीन कहा गया है यानी कि नियोलिथिक कहा गया है, नवपाषाण युगीन कहा गया है। और जब बात करें, दीज इंक्लूड टूल्स दैट वर पॉलिश टू गिव अ फाइन कटिंग एज, और उनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए पॉलिश चढ़ाया औजार भी इसमें शामिल हैं, ठीक है। औखली और मुसल का प्रयोग भी अनाज और वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था, और आज कई सौ साल बाद भी औखली और मुसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए ही किया जाता है। उसी तरह से क्या हुआ कि जो प्राचीन प्रशस्त्र युगीन औजारों का जब प्रयोग और निर्माण भी लगातार होता रहा है, कुछ औजारों का निर्माण हड्डियों से किया जाता था, ठीक है। आगे देखिए, many kinds of earthen pots have also been found. These were, देखिए, many kinds of earthen pot have also been found. These were sometimes decorated and were used for storing things. People began using pots for cooking food, especially grain like rice, wheat and lentils that now became an important part of the diet. Besides, they began weaving cloths using different kinds of materials, for example cotton, that could now be grown. Did things change everywhere and all at once? Not quite. In many areas, men and women still continue to hunt and gather food, and elsewhere, people adopted farming and herding slowly over several thousand years. Besides, in some cases, people try to combine these activities, doing different things during different seasons. इसमें क्या बताया? देखिए, इसमें बताया है कि नवपाषाण युगीन पुरास्थलों से विभिन्न प्रकार के जो मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। लोग इन पर जो है सजावट भी करते थे, ठीक है। बर्तनों का उपयोग विभिन्न प्रकार की चीज़ों को सुरक्षित रखने के लिए किया गया, लेकिन बाद में इनका प्रयोग खाना बनाने के लिए भी किया जाने लगा। चावल, गेहूँ, ठीक है, चावल, गेहूँ, दलहन अब आहार के जो है महत्वपूर्ण भाग बन चुके थे। लोगों ने कपड़ों की बुनाई का काम शुरू कर दिया। इनमें काम आने वाले कपास जैसे आवश्यक पौधे भी उगाए जा सकते थे, ठीक है। और क्या आपको क्या लगता है कि ये परिवर्तन सब जगह एक साथ दिखाई दे होंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक तरफ जहाँ लोग शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते थे, वहीं दूसरी ओर अन्य लोगों ने हजारों साल के दौरान खेती और पशुपालन को भी अपना व्यवसाय बना लिया था। अनेक स्थानों पर क्या हुआ कि लोग मौसम में परिवर्तन के अनुसार अपनी व्यवसाय बदलकर अपनी आजीविका चलाया करते थे, ठीक है। आगे देखिए, इसमें आप देखेंगे व्हाट अबाउट अदर कस्टम्स एंड प्रैक्टिस, अन्य रीति रिवाज क्या थे। आर्कियोलॉजिस्ट डज नॉट टेल अस डायरेक्टली अबाउट दीज। स्कॉलर्स हैव स्टडीड द लाइव्स ऑफ प्रेजेंट डे फार्मर हु प्रैक्टिस सिंपल एग्रीकल्चर। दे हैव आल्सो स्टडीड द लाइव्स ऑफ हर्डर्स। मेनी ऑफ दीज फार्मर्स एंड हर्डर्स लिव इन ग्रुप्स कॉल्ड ट्राइब्स। स्कॉलर्स फाइंड दैट दे
follow certain customs and practice that may have existed earlier as well. देखिए, जो पुरातत्वविद हैं जो हैं इस विषय में ज़्यादा नहीं जानते कह सकते, ठीक है। विद्वानों ने ऐसे बहुत से किसानों का विश्लेषण भी किया है, क्या कि ये जो कृषक हैं और पशुपालक हैं ये समूह में रहते हैं जिन्हें जनजाति कहते हैं, ठीक है। विद्वानों ने और क्या निष्कर्ष निकाला कि ये लोग कुछ ऐसे रीति रिवाजों को मानते थे जिनकी पहले से ही प्रचलित होने की संभावना है, ठीक है। आगे देखिए, अ क्लोजर लुक लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़। देखिए, दिस साइट्स इज लोकेटेड इन द फर्टाइल प्लेन नियर द बोलन पास विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट इनटू ईरान. Mehergarh was probably one of the places where women and men learned to grow barley and wheat and rear sheep and goats for the first time in this area. It is one of the earliest villages that we know about. यानी कि मेहरगढ़ नाम का जो स्थान है, देखिए इसकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है कि ये जगह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास स्थित है, जो एक हरा भरा समतल स्थान है, ठीक है। मेहरगढ़ वह स्थान है जहाँ पर क्या होता है कि स्त्री और पुरुषों ने सबसे पहले जौ और गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा था. Archaeologists who excavated the sites found evidence of many kinds of animal bones from the earliest levels. These include bones of wild animals such as the deer and pig. In later levels, they found more bones of sheep and goat, and in still later levels, cattle bones are most common, suggested that this was the animals that was generally kept by the people. यहाँ पर खुदाई करते समय पहले के स्तर में पुरातत्वविदों को हिरण और सूअर जैसे जंगली जानवरों की हड्डियाँ मिली, और उसके बाद के स्तर में भेड़ बकरियों की हड्डियाँ ज़्यादा मात्रा में मिली, और उसके ऊपर के स्तरों में ज़्यादा मवेशियों की हड्डियाँ मिली. यानी कि लेवल से अंदाज़ा लगाते हैं कि वो कौन से टाइम का है, और ऐसा मालूम होता है कि इस समय तक इन लोगों ने मवेशियों को पालना शुरू कर दिया. ठीक है, अब देखिए आगे बात क्या होती है. Other finds at Mehergarh include remains of square or rectangular houses. Each house had 4 or more compartments, some of which may have been used for storage. When people die, their relatives and friends generally pay respect to them. People look after them, perhaps in the belief that there is some form of life after death. Burial is one such arrangement. Several burial sites have been found at Mehergarh. In one instance, the dead person was buried with goats, which were probably meant to serve as food in the next world. देखिए, मेहरगढ़ नाम के स्थान से चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं. प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ में भंडारण भी किया जाता होगा, यानी कि अनाज को भंडारण करके रखा जाता होगा. ठीक है. When people die, जब लोग मरते होंगे तो क्या करते हैं कि उनके जो रिश्तेदार हैं और जो पड़ोसी हैं वो लोग क्या करते थे कि उनको आदर देते थे, और लोग ये सोचते थे कि भाई उनके लिए जो उनको दफनाया जाता था तो कई चीज़ें उनके साथ में रखते थे वो. ठीक है, जैसे बकरी वगैरह रख दी, और वो सोचते थे कि नेक्स्ट वर्ल्ड में जब वो जाएंगे तो उनको भोजन की आवश्यकता होगी तो इस्तेमाल कर लेंगे. ये उनकी सोच थी. ठीक है, आगे देखिए, अ क्लोजर लुक दाउजली हेडिंग. फाइंड दाउजली हेडिंग ऑन मैप 2. दिस इज अ साइट ऑन द हिल नियर द ब्रह्मपुत्र वैली क्लोज टू रूट्स लीडिंग इनटू चाइना and Myanmar. Here stone tools including mortars and pestles have been found. These indicate that peoples were probably growing grains and preparing food from it. Other finds include jadeite, a stone that may have been brought from China. Also common are finds of tools made of fossil wood, ancient wood that has hardened into stone and pottery. देखिए, दाउजली हेडिंग जो है एक पुरास्थल चीन और म्यांमार जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी की एक पहाड़ी पर स्थित है. दाउजली हेडिंग में क्या होता है, खरल और मूसल जैसे पत्थरों के उपकरण उनको मिले हैं. किनको? आर्कियोलॉजिस्ट को. और इससे क्या पता लगा कि यहाँ के लोग भोजन के लिए अनाज उगाते थे. यहाँ पर जेडाइट पत्थर भी मिला है, और ये पत्थर चीन से आया होगा. ठीक है, और इसके अलावा क्या मिला, यहाँ पर कास्टम के औजार और बर्तन भी मिले हैं, यानी कि वुड के जो बर्तन और औजार भी मिले हैं. ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.